committee, and also from the side of Kartikeya Bal Pratibha Puraskar. Of course, we are here on stage in honor of Mr. Kailash Satyarthi, and we have here Mr. Ribu Satyarthi, Bhuvan Ribu. I request Mr. Subhash Neopane sir to kindly felicitate Mr. Bhuvan Ribu. Subhash Neopane sir, the principal of Apex Life School, is felicitating Bhuvan Ribu, the son of the Nobel laureate. We have a very rare presence on stage. I would like to request Mohan Karti sir to felicitate the Nobel laureate. He is the chairman of Kartikeya Bal Pratibha and Prarambha Bal Pratibha Puraskar course. And Mr. C.P. Acharya is felicitating Mr. Kailash Satyarthi from the side of National Pension Kathmandu district. I would like to request Mr. Kartikeya Ghimire to make arrangements for the distribution of Kartikeya Bal Pratibha and Prarambha Bal Pratibha Puraskar, these two awards to young talented children. I would like to invite these children on stage to receive these certificates from the Nobel laureate Kailash Satyarthi. Children. Nobel laureate Kailash Satyarthi. Even though I am Minister of the government, but I am here more as a part of the Apex family. As I am chairperson of the college and part of the Apex family, it gives me immense pleasure to welcome somebody like Kailash Satyarthi. Kailash Satyarthi's three basic causes that he championed: education for all, elimination of child labor, and poverty eradication. These three themes are probably as important to Nepal as to any other country, because Nepal sends more than 3 million people as laborers to other countries in the world. Many Nepali girls are abducted at very early age and are sold to brothels in many places. That has happened because there is rampant poverty in the country. This has happened because they have not been able to go to the school. This has happened because we have not yet been able to convince parents and guardians that child labor is the worst menace this civilization faces. Until we eradicate child labor, child slavery, we cannot do anything. And this is what probably motivated a young engineer while teaching in Bhopal decided to take a very different cause. The cause of the most downtrodden people in the world, most neglected people in the world. And as he started his campaign to eradicate all forms of child slavery and bring to the global attention the plight of the children in the world, he could attract the attention of the world, but not only that, could get ILO 182 adopted by the international agency. And the work that he has done has now shifted the focus of this issue not just from the South Asia, but the entire humanity, the entire globe now has recognized the importance of this issue. And this is not only a menace in our region of the world. People in Eastern Europe, from the very downtrodden areas of Eastern Europe, many young girls migrate to affluent Western Europe and are sold in the brothels there. So it's not only a phenomenon that happens in one part of the world and does not happen in the other part of the world. So because of the importance of the work Kailash Satyarthi has done, he has done global review, he has done Nobel Peace Prize. So it's a great pleasure to welcome him to Apex family, and I would not take much of his time because he has a very hectic schedule all day today, just like any other day. So आदरणीय इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, मेरे मित्र, मेरे बेटे दिल्ली जी, बहनों और भाई, अभी मैं बहुत गौर से सारे कार्यक्रम देख रहा था। हमारे बच्चे जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे,
सबसे पहले आशा, कहाँ है आशा? आशा अंग्रेजी में जिस तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस करा रही थी, when Asha was introducing me in English, she was so professional, she was so passionate, she was so articulated. I thought that one day when she will come back after winning the Nobel Peace Prize and will give such a speech, I will come and welcome her here in this country. और हमारी दूसरी दो बेटियां भी, सपन और प्रतिभा, इतना सुंदर तुम लोगों ने डांस किया कि मेरी पत्नी सुमेधा जी मुझे बता रही थी कि राग हमीर में कैसे सुंदर डांस किया जा सकता है, उससे भी ज्यादा सुंदर तुम लोगों ने किया। जब से मैं यहाँ काठमांडू की धरती पर उतरा हूँ, मुझे लगता है कि एयरपोर्ट से लेके स्कूल तक पूरे आसमान के मुस्कुराते हुए चलते हुए सितारे यहाँ आप लोगों के बच्चों के रूप में यहाँ उतर कर मुस्कुरा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। मुझसे बार बार वहां पूछ रहे थे लोग, ओस्लो में जब मैं नोबेल प्राइज ले रहा था, लेने गया, कैलाश सत्यार्थी जी आपको इतनी प्रेरणा, इतनी शक्ति, इतनी ताकत इतने सालों से कैसे मिल रही है? तो मैं उनसे कहता था, आज भी कहता हूं और सबसे कहता हूं कि मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है दुनिया में जिसको हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों बच्चे इतना प्यार करते हैं, मुझे अपना दोस्त समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, अपना पिता समझते हैं। जब भी आप ताली बजाते हो, मुस्कुराते हो, मुझसे इतना प्रेम का इजहार करते हो, मुझे लगता है कि आपके चेहरों से, मेरे प्यारे बच्चों के चेहरों से, मेरी बेटियों के चेहरों से परमात्मा मुस्कुरा के मुझे प्यार कर रहा है। अभी हमारे मंत्री जी, the Honorable Minister was saying that Kailash ji got this Nobel Prize. Many people think that Kailash ji got that Nobel Prize, but I never thought so. Right on the podium of the Nobel Prize, वहाँ जो इस तरह का पोडियम था, वही मैंने खूब जोर से कहा था कि ये पुरस्कार दुनिया के बच्चों के लिए है, सिर्फ एक आदमी मेरे लिए नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ इतनी देर से, ये पुरस्कार किसको मिला है? ऐसे तो आप लोग मेरे दोस्त नहीं बन पाओगे, फिर तो मैं रूठ जाऊंगा, मनाते रहोगे, मैं एक आध घंटे नहीं बैठा रहूंगा और रूठ के सारे प्रोग्राम मेरे कैंसिल हो जाएंगे पार्लियामेंट वगैरह के। मुझे जोर से बोलो, मैं पूछता हूं कि ये पुरस्कार किसे मिला है? सुनो, जिसको मिला है वो हाथ ऊपर करके कहेगा मुझे मिला है। ये पुरस्कार किसको मिला है? ये नोबेल प्राइज किसे मिला है? जोर से बोलो, मुझे मिला है। ये नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? आपको मिला है ना? इसीलिए जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मैंने कहा, मैं जब दिल्ली लौटूंगा उसे लेकर, तो सबसे पहले मैं अपने उस इलाके में जाऊंगा, उस जगह जाऊंगा जहां मैं पैदा हुआ हूं। भारत में मध्य प्रदेश में विदिशा में मैं पैदा हुआ हूं, जो सांची के स्तूप में महात्मा बुद्ध के उनके नजदीक। और मैंने बिना किसी से बात किए कह दिया कि दुनिया में कितने ही निमंत्रण मुझे आते रहे, मेरे पास इस वक्त 10,000 के लगभग निमंत्रण आ चुके हैं दुनिया भर के देशों से।
लेकिन मैंने कहा मैं सबसे पहले मेरी बेटियों से, मेरे बेटों से, मेरे भाइयों से, बहनों से मिलने नेपाल आऊंगा। ये मेरी पहली यात्रा। जिस वक्त नेपाल के बच्चों को, बेटियों को जो गुलामी में, दुर्व्यापार में, ट्रैफिकिंग में, बॉन्डेड लेबर में फंसे हुए हैं, जब मैं उनको मुक्त कराता हूं और उन माओं के हवाले करता हूं जिन माओं ने भरोसा छोड़ दिया था, विश्वास छोड़ दिया था कि उनकी बेटी कभी उनकी गोद में वापस आएगी, उनका बेटा कभी उनकी छाती से लिपटकर दोबारा चूमेगा उन्हें। और जब मेरी उन नेपाली बहनों के बच्चों को, उन भाइयों के बच्चों को उनकी गोद में मैं पहुंचाता हूं और उनके चेहरे से प्यार का, खुशी का जो पहला आंसू उनके गालों पे टपकता है, मुझे लगता है कि परमात्मा मुझे आशीर्वाद दे रहा है। Has ignited his compassion and transformed that compassion to a global movement, what we call Buddhism today. करुणा से पैदा हुआ एक बालक, एक नौजवान सारी दुनिया में बुद्ध बन सकता है। मैं मानता हूं कि मेरे साथ, मेरे सामने, मेरे बगल में जो बच्चे बैठे हैं वो सब करुणा से भरे हुए हैं, सबके अंदर कंपैशन है। इस कंपैशन को हम ग्लोबलाइज करें, इस कंपैशन के जरिए एक दूसरे से जुड़ें। भारत के बच्चे पाकिस्तान के बच्चों से जुड़ें, पाकिस्तान के भारत से जुड़ें, नेपाल से जुड़ें, अफ्रीकी बच्चों से जुड़ें, अमेरिकी बच्चों से जुड़ें, यूरोप के बच्चे जुड़ें, सब बच्चे एक दूसरे से जुड़ें। आप तैयार हैं इसके लिए? कौन कौन बच्चा आज से ये सोचता है कि दुनिया के सारे बच्चे मेरे भाई बहन हैं? जोर से बोलो, ऐसे धीरे बोलोगे तो फिर मैं रूठ जाऊंगा। जोर से बोलो। आप सोचते हो अफ्रीकी बच्चे किसके भाई बहन हैं? और पाकिस्तान के और यूरोप के? इसको अपने दिल में बसा लो, सारे हमारे बच्चे। हमारे और भी अभी कार्यक्रम हैं, लेकिन एक बात समझ लो सब लोग, आज तुम लोगों ने सबने हाथ उठाकर जोर के साथ कहा है कि नोबेल प्राइज मेरा है। कहा है ना? अभी मेरा नहीं, सबने कहा मेरा है, हमारा है, मेरा मेरा मिलकर सबका हमारा हो गया। अब सारे नेपाल के इतने सारे बच्चे कह रहे हैं हमारा है, तो जिम्मेवारी भी बढ़ गई। अकेले कैलाश सत्यार्थी की जिम्मेवारी नहीं रही। मेरे पास तो नोबेल प्राइज होता तो मेरे पास सारी जिम्मेवारी होती कि मैं दुनिया से बाल मजदूरी खत्म करूं, मैं दुनिया से बच्चों की अशिक्षा खत्म करूं, मैं दुनिया से बच्चों पर हो रही हिंसा खत्म करूं। मेरे ऊपर जिम्मेवारी होती, नैतिक जिम्मेवारी। लेकिन अब ये नैतिक जिम्मेवारी आप सबकी, सारे नेपाल की। तैयार हैं इसके लिए? आप अगर किसी बच्चे पर जुल्म होता देखेंगे तो आवाज उठाएंगे? किसी बेटी पर, जो मेरी बेटी है नेपाल में रहती है, लाखों ऐसी बेटियां हैं उनकी तुम्हारी तरह जो यहाँ रहती हैं, अगर उसके साथ कोई छेड़खानी हो रही होगी तो आवाज उठाओगे? अगर कोई दलाल कहीं से आके, इंडिया से, गल्फ से, कहीं से आके अगर हमारी बेटियों को यहाँ से चुरा के, बहला फुसला के, लालच दे के, गुलाम बना के ले जाएगा पड़ोस में या दूसरी जगह, तो आवाज उठाओगे? हमारे मीडिया के भाई खासकर, ये फोटो आप मेरे खींच रहे हो, जोर से बोलो आपकी नोबेल प्राइज आपको भी मिला है। मिला है कि नहीं मिला? अगर आप मुझे अपने से अलग करोगे और बीच में कैमरा, पीछे आप और आगे मैं, तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। मैं ऐसे रिश्ते को नहीं मानता। मैं आपको अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं और इस नाते मेरे सारे परिवार की जिम्मेदारी है कि
दुनिया से हम बाल दास्तां खत्म करेंगे, दुनिया से बच्चों की अशिक्षा और हिंसा खत्म करेंगे और we now begin a new movement of globalization of compassion. We now begin a new movement from the lens of the great Lord Buddha to make this world one world, a united world, a compassionate world, a beautiful world, a better world. Thank you so much. God, if you have a great characteristic of forgiveness, if you can forgive the people after fighting for a minute or two, it means it's not because you are educated, it's not because you are powerful or wealthy, it's because a child lives inside you. आपके अंदर एक बच्चा रहता है जिसके वजह से आपके अंदर सरलता, सादगी और सच्चाई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके भीतर के उस बच्चे को मत मरने दें। बच्चों की आंखों से दुनिया को देखोगे तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी। बच्चे की आंखों से दुनिया को देखोगे तो कोई पराया नहीं लगेगा। बच्चे की आंखों से देखना सीखोगे तो नई नई चीजें सीखते रहोगे, सीखना बंद नहीं करोगे। बच्चों की आंखें हमारे अंदर पैदा करना चाहिए ताकि हम दुनिया को एक कर सकें। कल पाकिस्तान में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, परसों 2-3 दिन पहले वो बच्चे स्कूल आए थे, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर और घर लौटे, इनकी लाशें कफन से बंधी हुई लौटी। मानवता के इतिहास में इससे बुरा अध्याय कोई नहीं है, इससे काला पन्ना कोई नहीं है। जब 125-150 बच्चों को इस तरह कतार में खड़े करके विश्वस्तपूर्वक निर्ममता से, बर्बरता से भूल दिया गया। अभी हम लोगों ने उनके लिए एक मिनट का मौन रखा, लेकिन हमें हमारे बच्चों को, खासकर यहाँ जो युवा लोग मौजूद हैं, इनको अपना नजरिया और बड़ा करना पड़ेगा। हम जिस दुनिया में ऑलरेडी जा चुके हैं वो ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है। इंटरनेट के जरिए हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं, सूचना के जरिए एक दूसरे से जुड़ गए हैं। मैं बार बार अपने फोन पे हाथ लगाता हूं और ईमेल चेक करने की कोशिश कर रहा हूं जब से एयरपोर्ट से उतरा हूं, लेकिन इंटरनेट ना होने से मैं तक परेशान हूं थोड़ा थोड़ा। My heart is resonating with thanks and gratitude to Mr. Satyarthi, who has blessed with us his presence. Thank you, sir, for accepting our humble invitation to be here. Your presence has inspired us, each one of us to revisit our own ambitions and think that selfless service to the smallest of the human beings will mean many times higher than thinking very high in the wrong direction. Today's children will grow into the leaders of tomorrow and reflect alike what we have invested upon them today. Thank you, Mr. Satyarthi, and long live your endeavors.